So dear students, in this video I will discuss some more questions of exercise 3.3. See question number 11. Question number 11, exercise 3.3. Here you have to show that cos 3 pi by 4 plus x minus sine of notice cos again minus cos of 3 pi by 4 minus x is equal to minus root 2 times sine x. So start with the left hand side. Here you can apply formula of cos x plus y, which is cos x cos y minus sin x sin y, and in this term you can apply the formula of cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y. So these two formula will apply here. So left hand side, first term is here cos 3 pi by 4 cos x minus sin 3 pi by 4 sin x. This is the first term, minus second term you can write this one cos 3 pi by 4 cos x plus sin 3 pi by 4 sin x. Simply applying this formula cos x plus y in the first term, cos x minus y in the second term. And now you can observe that these two terms are present with the same sign, so they will clearly cancel each other, and these two terms will be added. So it will become minus sin 3 pi by 4 sin x minus sin 3 pi by 4 sin x. So they will be added, it will become minus 2 sin 3 pi by 4 sin x. And now we can find the value of this minus 2 sin 3 pi by 4 you can write as pi minus pi by 4 sin x, and you know that sine of pi minus x is equal to sin x. This formula you can apply. So this will become minus 2 sin pi by 4 sin x, and now value of sin pi by 4 we can write minus 2 upon root 2 sin x. So finally this will become minus root 2 sin x, which is RHS. In this way we get the required result. तो मेनली आपको प्रूव करना था यहाँ पे cos 3 pi by 4 plus x माइनस cos 3 pi by 4 माइनस x की वैल्यू माइनस रूट 2 sin x के इक्वल है. तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. cos x plus y का फॉर्मूला cos x cos y माइनस sin x sin y, और cos x माइनस y का फॉर्मूला cos x cos y प्लस sin x sin y. फर्स्ट टर्म में cos x plus y का फॉर्मूला अप्लाई किया, सेकंड टर्म में cos x माइनस y का फॉर्मूला अप्लाई किया. अब इन दोनों का आप देखेंगे तो ये टर्म जो है cos 3 pi by 4 cos x cos 3 pi by 4 cos x दोनों सेम टर्म्स हैं विद सेम साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दो टर्म आपके ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस में आ गए, दोनों ऐड हो गए, माइनस 2 sin 3 pi by 4 sin x हो गए. और उसके बाद आपको sin 3 pi by 4 की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया. sin 3 pi minus x sin x के इक्वल होता है, तो sin 3 pi by 4 को लिखा गया sin pi minus pi by 4, और ये आपका अगले स्टेप में बन गया sin pi by 4, और sin pi by 4 की वैल्यू 1 by root 2 होती है, माइनस 2 by root 2 sin x, और ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट 2 sin x आ जाएगा. यही आपका राइट हैंड साइड था. इसको और थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं, माइनस रूट 2 sin x, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 12 is like this. Show that sin square 6x minus sin square 4x equal to sin 2x into sin 10x. So this is to be proved here. So first of all, you will apply the formula of a square minus b square equal to a minus b into a plus b.
because this is difference of square starting with the left hand side. A is sin 6x, b is sin 4x. A you can take as sin 6x, b is sin 4x. So this will become a plus b, a minus b in first bracket, sin 6x minus sin 4x first bracket, then sin 6x plus sin 4x in the second bracket, using the formula a square minus b square equal to a minus b into a plus b. A as sin 6x, b as sin 4x. And now to simplify these two, you have to use the formula of sin x minus sin y. Sin x minus sin y in this term, this is equal to 2 times 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2. And for this term you will apply the formula of sin x plus sin y equal to 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. So these two formula will be applied. So in the first term, sin x minus sin y, so sin x minus sin y starts with cos and then sin, and sin x plus sin y starts with first sin then cos. So here 2 cos 6x plus 4x divided by 2 into sin of 6x minus 4x divided by 2. This is the first term simplified. Multiply to second term. Second term we can write using this formula, first sin then cos. So 2 sin of 6x plus 4x by 2 into cos of 6x minus 4x divided by 2. And after simplifying it further, it will become 2 cos of 6x plus 4x is 10x by 2, that is 5x. Here 6x minus 4x is 2x by 2, that is x sin x. So this is the simplified value of first bracket. Multiply to second bracket, here 2 sines, 2 sin of 5x into cos of x. Same angles you will get again here. So now this is the situation here. तो इस तरह से पहले जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x को दिखाना sin 2x sin 10x के इक्वल, तो पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b प्लस b के फॉर्म में लिखा गया, sin x को a सपोज किया गया, sin 4x को b सपोज किया गया, तो sin 6x माइनस sin 4x फर्स्ट ब्रैकेट और sin 6x प्लस sin 4x सेकेंड ब्रैकेट. उसके बाद फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, डिफरेंस वाला फॉर्मूला sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2, और दूसरा ब्रैकेट में आपको sin x प्लस sin y का फॉर्मूला 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2. इनको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई हुआ 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2, सेकेंड ब्रैकेट में 2 sin 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू cos 6x माइनस 4x बाई 2, और 6x प्लस 4x बाई 2 आपको 5x है, तो दोनों जगह 5x आ जाएगा पहला एंगल, और 6x माइनस 4x बाई 2 सॉल्व करेंगे तो ये x आएगा, दोनों जगह x आ जाएगा. अब इसमें थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना है. इसको थोड़ा सा आप रीअरेंजमेंट करेंगे और एक फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए करेंगे. इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको? दिस फॉर्मूला sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x. अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है दोबारा. इसके बाद आप ऊपर चलते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों एंगल यहाँ पे सेम होने चाहिए साइन के साथ, और cos इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लेना है. तो 2 तो रहेगा ही, cos 5x और sin 5x को एक साथ कर लेना है आपको. 2 sin 5x cos 5x इन वन ब्रैकेट, इस फॉर्म में आ गया 2 sin ऑफ सम एंगल इंटू cos ऑफ सेम एंगल इन द सेकेंड ब्रैकेट. बाकी जो टर्म्स बचे इनको ले लीजिए आप, sin x cos x को एक साथ में ले लेंगे, 2 sin x cos x, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल गेट sin ऑफ द जस्ट डबल एंगल, जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका डबल एंगल यहाँ मिल जाएगा आपको sin उसका. यहाँ पर हो जाएगा sin ऑफ 2 इंटू 5 दैट इज 10x इंटू sin ऑफ 2 इंटू x दैट इज 2x. इस तरह से आपका ये आ गया sin 2x
साइन 10x इक्वल टू RHS। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इतना इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद ये मिला आपको। इसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे आप। 2 sin x cos x इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि साइन और कॉस के साथ दोनों एंगल सेम होने चाहिए, इसी हिसाब से इसको रीअरेंज करना। मतलब 5x वाले दोनों टर्म एक साथ लिख देना है, साइन 5x cos 5x, और x वाले दोनों टर्म एक साथ लिख देना। तो ये साइन 2 इंटू 5x मतलब ये साइन 10x हो गया, और ये साइन 2 इंटू x साइन 2x हो गया। इस तरह से आपका फाइनली ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Here you have to show that cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x. So this question is also similar to your previous question. Difference of square is given. So first of all we apply a square minus b square equal to a minus b plus b. So a is taken as first term, that is cos 2x, b is taken as cos 6x. So this will become cos 2x minus cos 6x, second bracket will be cos 2x plus cos 6x. Next we have to apply two more formulas. Those two formulas are cos x minus cos y for the first bracket. Cos x minus cos y is, this formula is starting with minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Both terms sign starting with minus sign. And then second bracket will be solved with cos x plus cos y. This is equal to 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. So these two formulas you have to apply here. The first formula cos x minus cos y in the first bracket. So this will become 2 minus 2 sin of 2x minus 6x by 2, 2x plus 6x by 2 into sin of 2x minus 6x by 2. This is the first bracket simplified. Multiply to second bracket you can write. Here both terms will be cos terms, 2 cos of 2x plus 6x by 2 into cos of 2x minus 6x by 2. तो इस तरह से ये अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आ जाएगा पहला ब्रैकेट माइनस 2 साइन 2x plus 6x by 2 is 4x and 2x minus 6x is minus 4x by 2 minus 2x. So this will become sin of minus 2x. You see the different bracket. Similarly, in the second term, you will have 2 cos 4x into cos of minus 2x. इस तरह से अब इसके बाद हम आगे ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी ए प्लस बी, cos x को a लिया गया, cos 6x को b लिया गया, तो ये आ गया cos 2x माइनस cos 6x इंटू cos 2x प्लस cos 6x। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना है cos x माइनस cos y का। इसमें दोनों साइन टर्म्स हैं लेकिन ये माइनस से स्टार्ट होगा आपका। तो 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस y बाई 2, और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला सेकेंड टर्म में अप्लाई होगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 sin of 2x plus 6x by 2 into sin of 2x minus 6x by 2, सेकेंड ब्रैकेट में 2 into cos 2x plus 6x by 2 into cos of 2x minus 6x by 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 sin 4x into sin of minus 2x, और ये हो जाएगा आपका 2 into cos 4x into cos of minus 2x। अब यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूले का ध्यान देना होगा। जो कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल होते हैं, जैसे साइन ऑफ माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, क्योंकि साइन में आपका जो माइनस होता है वो बाहर आ जाएगा, और कॉस ऑफ माइनस 2x विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। कॉस में माइनस आपका कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके आगे अब चलते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू
So this minus you can take out, then it will become plus 2 sin 4x sin 2x, क्योंकि दोनों माइनस आपने बाहर निकल लिए, इधर कैंसिल हो गए, और यहाँ पे आ गया 2 cos 4x cos 2x, ये आ गया। अब इसको फिर आपको ये फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, इसको दोबारा अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, मतलब 2 इंटू साइन ऑफ सम एंगल इंटू कॉस ऑफ सेम एंगल, इस तरीके से, मतलब 2x वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, 4x वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, 2 इंटू साइन 4x इंटू साइन कॉस 4x फर्स्ट ब्रैकेट, एंड देन 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस एंगल का डबल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर x था तो यहाँ 2x हो गया, अगर यहाँ पर 4x हो तो 8x हो जाएगा साइन ऑफ, ये हो जाएगा साइन 4x, तो ये हो गया साइन 2 इंटू 4x इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 2x, ये हो गया साइन ऑफ 8x साइन ऑफ 4x, और जैसे लिखा हुआ है साइन 4x साइन 8x इक्वल टू RHS। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो मेनली इसमें फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना, कहाँ कहाँ कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहा है, इसको ध्यान देना है। जैसे ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई हुए, उसके बाद ये साइन ऑफ माइनस 2x में माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस 2x में माइनस बाहर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ पे जो साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि दोनों एंगल साइन और कॉस के साथ सेम एंगल होने चाहिए, और रिजल्ट क्या आएगा उसी का डबल 2 इंटू 4x, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, दोनों एंगल सेम है, इसका डबल आ जाएगा, तो ये साइन 8x हो गया, साइन 4x हो गया। इस तरह से फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।